with this practice, if you will put in your practice daily and do it lovingly, faithfully, then one day will come in your own life when you will realize that truth. This Mahayoga is not new method, it's very old method. You will find in Upanishad, Yoga Tattva Upanishad, and some other Upanishads too indicates this method. But be aware, when you are doing it, in the beginning you should try to take deep breath as long as you can. Breathing process has great meaning in this practice. And relate your mantra with your breath, mentally chant it, and be aware about that meaning too, and try to listen that sound, whatever is going on with breath. This is very great process. And be aware about cause and effect. As I told you many times that your lungs is very small and nostrils are very small too. And beyond your nostril, tip of nose, there is endless energy. And you are receiving same energy in the form of breath. And you are alive due to that. It means source of life is infinite. But your life is not infinite, that is finite. Individual life. Okay? So source of life is infinite, but individual life is finite. There are two things, infinity and finite. So whatever is finite, that is nothing but projection of infinity, manifestation of infinity. Okay? That is not a part of infinity, because I can't say part. Part means something separate from that. But infinity can't be divided. So I can't say this is a part, but this is a projection. This manifestation of same truth, same infinity. Okay? So be aware about this truth, then automatically your little ego will merge into cosmic ego. Your little I will merge into cosmic I. It means your little breath will be one with cosmic breath. Okay? This is the aim of practice. This is the aim of your meditation too. Because if you will stay in your finite form, you can't be free from desire, you can't be free from fear, you can't be free from temptation, and you can't be free from any kinds of demand. Okay? That demand or temptation or desire or lust and all these things will come in your life and will stay. You will never be able to remove all these demonic qualities. And if a person has demonic quality, he will suffer too. I don't think that any power can make you free from suffering. Yeah, you can pray God, you can chant
holy name, you can do all other things, but you can't be free from suffering. If you are catching your entity or your individual entity. So in meditation process, you are merging your entity into its own cause. Then you become one with that infinity and you become free from all kinds of suffering. As you know, that in awakening state, you always live within your individuation. And in dreaming state also, you are living with your individuation. But when you are entering into deep sleep, automatically you are dissolving your individuation into its own cause. And you forget your own self too. This is everybody's experience, that in deep sleep state, there is no separate entity. Okay? There is no separate individuation. So, when you reach in deep sleep, then you enjoy peace. Okay? And you are recharging your life, regaining energy. Because at that state, Upanishad says that you become one with its own cause, your own cause. Okay? So meditation is a process through which one can reach on that state as he is reaching unconsciously into deep sleep state. Okay? There's great differences between deep sleep and samadhi. Samadhi is achievement of a great and higher practice. But deep sleep state is not achievement of your effort. Okay? That is a natural process. So by nature you are going into that unconscious state, that is called deep sleep state. But by practice, by awakening effort, you are going into that state, is called samadhi state, and but you are achieving same energy and you are feeling same oneness with that cause. This is a very great process. So when you will do this, one day will come in your life, but that day will not come after so many years, but very soon. Okay? In Upanishad we are reading, and great seer told that if a person is really aspirant and he is doing this practice, within 3 months he will achieve that state. The great seer told in Upanishad. Okay? So, yeah, and one can do it and can achieve that. You have same potentiality, same ability, same faculties too in your life. If you will use properly, one day will come in your life when you will realize that truth. Okay? As I told you, there are two parts of this infinite nature. One is finite, individuation, and other is infinite cause. Okay? So, Lord Krishna stated in 15th chapter of Bhagavad Gita and described all these mysterious, truth. And I am going to explain that now in our own language. Shri Krishna Vande Jagat Guru. Shri Krishna Vande Jagat Guru. Shri Krishna Vande Jagat Guru. Shri Krishna Vande Jagat
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। मेरी प्रियात्माओं, गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक और 16वां। कल आप लोगों को ये बात समझाई गई थी कि दुनिया के जितने पदार्थ हैं वे सभी परमात्मा के अंश से ही प्रकट हुए हैं। तेजो में जो तत्व है वह भी परमात्मा के अंश से है, आपो में जो तत्व है वह भी परमात्मा के अंश से है, और अन्न में जो तत्व है वह भी परमात्मा के अंश से है। छांदोग्य उपनिषद में बात समझाई गई है कि उस परम सत्य से ये तीनों आविर्भूत हुए हैं। सर्वप्रथम वह परम सत्य ही था। सौम्य सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत्। ऋषि अपने शिष्य को समझा रहा है कि हे सौम्य, सुष्ठु मन वाला, सर्वप्रथम इस सृष्टि में सत्य ही था और उसी से ये सारा प्रसार आविर्भूत हुआ है। उस सत्य से आविर्भूत होने वाला जो ये सारा विस्तार है वो पहले 3 रूपों में प्रकट हुआ, तेज, अप और अन्न। तेज रूप में, अपस रूप में, रस रूप में और अन्न रूप में, जिसको आप गैसेज, लिक्विड और सॉलिड रूप कर दें। इन तीनों रूपों में एक ही सत्य प्रकट हुआ। वह परमात्मा ही इन 3 रूपों में प्रकट है, ऐसा उपनिषद कहती है। और उसी को भगवान ने यहाँ पर बताया कि यदादित्य गदम तेजो जगत भास्वते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यमुषा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और तेज अप अन्न के रूप में प्रभु प्रकट होकर के व्यक्ति के उदर में भोक्ता के रूप में भी वही प्रकट हुए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देवास्त प्राणापान समायुक्त पचामिन्नम चतुर्विधम। तो भोग्य और भोक्ता ये दोनों रूप में एक ही परमात्मा प्रकट है। एक संत प्रातः काल उठ करके गाया करते थे, बहुत वर्ष पहले की बात है। मैं उनके चरणों में रहा करता था। ये बात है, यहाँ तक मुझे याद है 54 की। तो प्रातः काल उठते 4 बजे से पहले, तो उठकर पहले उनके ओम का नाद करते और ओम का नाद करने के बाद फिर ये चिंतन करते हुए गाते, यात्री तुम्ही भव सागर केवट, पोत तुम्ही पतवार तुम्ही हो, दर्शक दृश्य तुम्ही नट नागर, नायक नाटककार तुम्ही हो, व्यष्टि समष्टि अहम कृति हो, मन बुद्धि तुम्ही हो, विचार तुम्ही हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, अकार उकार मकार तुम्ही हो। ये इस ढंग से वो बड़े प्रेम से चिंतन करते हुए इसे गाते। तो भगवान इस गीता में ये बात समझा रहे हैं कि तेज अप अन्न मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरा ही अंश है, मेरे ही प्रकाश से उत्पन्न हुआ है, और इन तीनों का भोक्ता और ज्ञाता भी मैं ही हूं। अब 15वें श्लोक में उन्होंने बताया कि समस्त प्राणियों की बुद्धि में आत्मा रूप से मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। समस्त प्राणियों की बुद्धि में
आत्मा रूप से मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं और मेरे से ही स्मृति और ज्ञान, विस्मृति और अज्ञान, ये दोनों मेरे से ही होता है। पुण्य आत्मा में, पवित्र चित्त में, पवित्र बुद्धि में स्मृति और ज्ञान का प्रकाश होता है, दूषित बुद्धि में, दूषित चित्त में विस्मृति और अज्ञान का प्रकाश होता है। होता मेरे से ही है। आत्मा की उपस्थिति में ही अज्ञान भी है और विज्ञान भी है। आत्मा की उपस्थिति में विस्मृति भी है और स्मृति भी है। आत्मा की उपस्थिति में ही हम इसे जानते हैं और हम इसे नहीं जानते, दोनों का बोध होता है। तो भगवान कहते हैं उसका हेतु मैं हूं। और वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, और संपूर्ण वेदों का जो वेद्य है, ज्ञेय है, वह मैं हूं। अनेक नामों से वैदिक ऋषि मुझे ही पुकारते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं। और वेदांत कृत, वेद के सिद्धांत का कर्ता भी मैं ही हूं। वेदांत कृत का कुछ महापुरुषों ने अर्थ लगाया है कि व्यासदेव के रूप में प्रकट होकर के वेदांत दर्शन का कर्ता मैं हूं। मैं ही वेद के सिद्धांतों का निर्धारण करता हूं। व्यास के रूप में, कृष्ण द्वैपायन के रूप में मैं ही प्रकट होकर के वेद के सिद्धांतों का निर्धारण किया है। या जितने अन्य संप्रदाय हैं, सब संप्रदायों के आचार्य जो गुरु हैं, ज्ञानदाता है, उनके रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूं। मेरा ही ज्ञान स्वरूप में है। और वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, और सही माने में वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूं। मेरे दिए हुए इस ज्ञान के विपरीत यदि कोई वेदार्थ करता है तो अज्ञानी है, वो वेद का ज्ञाता नहीं है। वेद का ज्ञाता मैं हूं। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं यही वेद का सार तत्व है। ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों देखने में अलग अलग हैं, लेकिन चिंतन करने पर तीनों एक होते हैं। और जहां तीनों एक होते हैं उसी का नाम है समाधि। समाधि किसे कहते हैं? जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक हो जाए। ज्ञेय माने वह कारण रूप अनंत सत्य, और ज्ञाता माने ये कार्य रूप छोटा सा जीव, और ज्ञान माने इस जीव का वह साधन जिससे वह अपने कारण को जानता है। तो ये तीन कब तक हैं? जब तक कि जीव और ज्ञान और ज्ञेय परमात्मा है। और जब ये अपने आप को उठा करके परमात्मा में डिसॉल्व कर देगा, मर्ज कर देगा, उससे एक हो जाएगा, तो वहां त्रिपुटी नहीं रहेगी। वहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीन नहीं रहेंगे। वहां पर तो एक हो जाएगा, केवल ज्ञेय ज्ञेय रहेगा। या ज्ञाता ज्ञाता रह जाएगा, या ज्ञेय ज्ञेय रह जाएगा, या ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तीन में एक ही होगा, तीनों नहीं रहेंगे वहां। क्योंकि कौन जानेगा, किसको जानेगा? श्रुति कहती है छांदोग्य की कि कौन जानेगा, किसे जानेगा? क्यों जानने वाला ही नहीं रहा। बिंदु में सिंधु समान को अचरज का सो कहे, हेरन हार हिरान रहीमन अपने आप में। जानने वाला ही खत्म हो जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, इसमें एक अवस्था ऐसी आएगी जबकि आप जो सोचते हैं, सोचने वाला ही वहां नहीं रहेगा, चिंतन करने वाला ही नहीं रहेगा। जब आप धीरे धीरे अपने कारण में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये ब्रह्मचक्र की कहानी मैं रोज सुनाता हूं आप लोगों को। जिस दिन चेतना आपकी ब्रह्मचक्र में पहुंच जाएगी, वहां स्टेब्लिश हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी, उस समय आप अलग और परमात्मा अलग नहीं रहेगा। उस समय तो केवल परमात्मा ही रह जाएगा। अब इसमें दो प्रकार की साधना होती है। एक अहंग्रह उपासना की साधना है। अहंग्रह की उपासना जो होती है, अहंग्रह उपासना की साधना में केवल मैं रह जाता है, केवल मैं, अहम रह जाता है, शुद्ध अहम ब्रह्म रूप में, जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। और दूसरी उपासना है भक्ति की, वो अहंग्रह की उपासना नहीं है, योग की उपासना है। उस उपासना में अहम नहीं रहता, अहम उसमें मर्ज हो जाता है, तो तुम रह जाता है। तुम माने तू ही तू है, मैं नहीं हूं, तू ही तू है। तो तू ही तू, भक्ति मार्ग वाले तो तू ही तू कहते हैं, और ज्ञान मार्ग वाले मैं ही मैं कहते हैं।
ये दोनों की स्थिति एक है, लेकिन दो प्रकार की अनुभूति है, क्योंकि इनकी उपासना की दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दो प्रकार के साधन हैं। अब गीता में भगवान ने बताया कि जो महात्मा उस अवस्था में पहुंच जाता है तो वासुदेव सर्वमिति, उसको अनुभव होने लगता है कि सब वासुदेव है, वासुदेव के सिवा और कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो इस अवस्था में पहुंच जाए कि वासुदेव ही सब कुछ है। दर दीवार दर्पण भय जित देखो तित तोय, काकर पाथर ठीक करो भय आरसी मोय। भक्त कहता है कि जहां मैं दृष्टि डालता हूं वहां तो ही तू दिखाई देता है, न कुछ आरजू है न कुछ गुप्तगू है, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। अब वो कहता न तो कोई चाह रह गई है और न तो कोई बात करने वाली रह गई है, न कुछ आरजू है न कुछ गुप्तगू है, और जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है, जहां दृष्टि जाती वहां तू ही तू दिखाई देता है। तो ये भक्त की भावना है, भक्त की उपलब्धि है। ये समाधि की उस अवस्था में ऐसी स्थिति आती है। लेकिन जहाँ अहंग्रह की उपासना होती है वहां उस अवस्था में पहुंचने पर वो कहता है कि ये तो सब मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ और नहीं है, मैं ही हूं सब, ये सब मेरा अपना स्वरूप है। क्योंकि उसका मैं अब इंडिविजुअल मैं नहीं होता, उसका मैं सीमित मैं नहीं होता, उसका मैं ये अहम वाला मैं शरीर में नहीं होता, उसका मैं जो होता है वो अनंत सत्य का मैं होता है। इसलिए ये दो अवस्थाएं हैं। तो जब वहां पहुंचने पर न ज्ञाता रहता है, न ज्ञान रहता है, न ज्ञेय रहता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, केवल एक सत्य रह जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जिस साधना से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं, वो तीनों एक की अवस्था मैं ही हूं। मैं ही ज्ञाता रूप में हूं, मैं ही ज्ञान रूप में हूं, मैं ही ज्ञेय रूप में हूं। ये भगवान ने समझाया। अब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों एक है, इस बात को समझने के लिए भगवान आगे इसकी व्याख्या कर रहे हैं। दो इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। का सृष्टि में सृष्टि जगत जो है अभिव्यक्त रूप में, सृष्टि माने अभिव्यक्ति। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि सृष्टि माने होता है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्त के रूप में, अभिव्यक्ता अवस्था में, प्रकट अवस्था में, मैनिफेस्टेड स्टेट में, प्रोजेक्शन का जो अवस्था है, इस अवस्था में आपको देखने में दो तत्व मिलेंगे, एक क्षर एक अक्षर, एक विनाशील एक अविनाशी। इस श्लोक के महात्माओं ने, आचार्यों ने अनेक प्रकार के अर्थ किए हैं, भिन्न भिन्न अपने सिद्धांतानुसार। त्रैतवादी ने अलग अर्थ किया है, द्वैतवादी ने अलग अर्थ किया है, विशिष्टाद्वैतवादी ने अलग किया है, अद्वैतवादी ने अलग किया है। सबने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार इसका अर्थ किए। अब क्रम से सुनिए। आचार्य शंकर के मत से यहाँ क्षर और अक्षर ये दो पदार्थ हैं। वो कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये सारा कार्य जगत जो है, ये संसार, ये तो क्षर है, और जो अव्यक्त प्रकृति है, इनका कारणावस्था जो है वो अक्षर है, और परमात्मा जो है यानी शुद्ध चेतन जो है इससे परे है। तो क्षर और अक्षर ये दोनों प्रकृति के कार्य और कारण को वो स्वीकार करते हैं। कार्य और कारण को अक्षर और कार्य को क्षर मानते हैं वो। ये आचार्य शंकर का मत है। इससे परे परम चैतन्य घन पुरुषोत्तम है, वो इससे भिन्न है। अब रामानुज क्या कहते हैं कि नहीं, ये क्षर और अक्षर क्योंकि पुरुष शब्द है यहाँ, इसलिए ये पुरुष के लिए कहा गया है। यहाँ प्रकृति का जिक्र ही नहीं है, इसमें प्रकृति का जिक्र नहीं है, ये तो पुरुष के लिए कहा गया। दो इमौ पुरुषौ लोके, तो पुरुष की व्याख्या में आप प्रकृति को क्यों यानी खींच रहे हो? तो यहाँ पर पुरुष की बात है। तो पुरुष दो प्रकार का है, एक क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर पुरुष है। का अक्षर पुरुष कौन सा है? का जो अनेक योनियों में जन्म रहा है, मर रहा है, जन्मने मरने वाला जो जीव है, ये तो क्षर पुरुष है।
और अक्षर पुरुष को ने कहा जन्म मरण के प्रवाह से जो मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है। मुक्त जो है वो अक्षर पुरुष है। अब न जन्मता है न तो मरता है। जन्म और मरण के प्रवाह से जो मुक्त हो गया है वह मुक्त आत्माएं अक्षर है, अक्षर पुरुष कही जाती है। और जो शरीर से संबंध, शरीर के संबंध से जन्मती और मरती रहने वाली आत्माएं हैं वो क्षर कही जाती हैं। तो ये रामानुज का सिद्धांत है। और परमात्मा इससे भिन्न है। आचार्य शंकर के मत से क्षर कार्य जगत और अक्षर कारण जगत और चेतन इससे भिन्न। और क्षर और अक्षर को पुरुष क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि परमात्मा जो है वह क्षर रूप में और अक्षर रूप में दोनों का प्रकाशक है, इसलिए इसकी पुरुष संज्ञा से कही है, वैसे पुरुष की बात नहीं है। ये उनका कथन है। रामानुज कहते हैं कि नहीं, क्षर माने यह जन्म मरण के प्रवाह में भटकने वाला जीव और अक्षर माने मुक्त आत्माएं जो अब जन्म मरण के प्रवाह से अलग हो गई हैं, क्योंकि दोनों पुरुष संज्ञक हैं, दोनों जीवात्माएं हैं, दोनों चेतन हैं। परमात्मा इससे भिन्न है, उनका एक कथन है। माधवाचार्य कहते हैं कि नहीं, क्षर जो है ये समस्त जीवों की संज्ञा है जो जन्मते मरते रहते हैं, अनेक रूपों में जन्मते हैं, अनेक रूपों में मरते हैं। इस जन्म मरण धर्मा होने के नाते इनको क्षर कहा गया है। और अक्षर जो है ये महामाया, भगवती, महालक्ष्मी, प्रकृति है। प्रकृति जो है वो अक्षर है, वही कूटस्थ कही गई है। और परमात्मा इससे परे है। माधवाचार्य जी त्रैतवादी है। वो जीव को अलग मानते हैं, प्रकृति को अलग मानते हैं, ईश्वर को अलग मानते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी हैं। वह जीव को अलग मानते हैं, प्रकृति को अलग मानते हैं, लेकिन दोनों को परमेश्वर के अधीन मानते हैं। और इस श्लोक में उन्होंने प्रकृति का कहीं दर्शन नहीं किया। वो कहते हैं कि पुरुष के ही, जीव के ही दो अवस्थाएं हैं, एक मुक्तावस्था है और दूसरी बद्धावस्था। बद्धावस्था में वो क्षर कहा जाता है, मुक्तावस्था में अक्षर कहा जाता है। और इसके लिए वेद का उन्होंने प्रमाण दिया है। सभी आचार्यों ने वेद के प्रमाण इसके लिए उद्धृत किए हैं। उपनिषदों से श्रुतियों का उद्धरण दिया है। और रामानुजाचार्य जी ने ये कहा कि इसमें जो क्षर पुरुष है वो तो भोक्ता है, और अक्षर पुरुष जो है वो दृष्टा है, भोक्ता नहीं है, मुक्त आत्मा है वो। तो अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम बहुई प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो हेको जुषमाणो अनुशेतो जहाँ ते काम भुक्त भोगाम अजो अन्य। तो वहां पर दो अज की बात कही गई है। एक इसका भोग करने वाला अज है और दूसरा इसका त्याग करके एकांत में निवास करने वाला मुक्त अज है। और ईश्वर इससे अलग है, ऐसी उन्होंने व्याख्या की है। और आचार्य शंकर के मत से कूटस्थ माने कारण प्रकृति, और रामानुज के मत से कूटस्थ माने कूटवत स्थित जो है वह यानी मुक्त आत्मा है। और माधवाचार्य के मत से कूटस्थ माने महालक्ष्मी यानी प्रकृति, वह भी कूटवत स्थित है। माधवाचार्य और शंकर के मत से कूटस्थ दोनों एक हैं, प्रकृति है, कारण है, विद्या यानी माया है। लेकिन क्षर में दोनों के मत में भिन्नता है। आचार्य शंकर क्षर को संपूर्ण भूत समुदाय जगत के कार्य जगत को मानते हैं, और माधवाचार्य क्षर शब्द से संपूर्ण जीवों को लेते हैं। जितने जीव हैं सब क्षर हैं, क्योंकि सब जन्म मरण धर्मा है, इसलिए ऐसा। रामानुज ने क्षर और अक्षर दोनों जीवात्मा के साथ संबंधित माना है। और क्षर को उन्होंने जन्म मरण प्रवाह में बहने वाली जीवात्मा और अक्षर को उन्होंने मुक्त आत्मा, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये विभिन्न प्रकार के भेद हैं आचार्यों के विचार में। और इसी को यहाँ पर दो इमौ पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च